easier to sell shares. Public limited companies के लिए, public limited के लिए it is easier to sell their shares because they sell them on the stock exchange where there are hundreds and thousands and millions of investors ready to invest. But for private limited companies, they can only sell their shares to their friends and family, so it is difficult for them to sell shares. Then companies have to make their accounts. ठीक है, और अकाउंट्स बनाने भी होते हैं, and they also have to be sent to the company house for public inspection as well. ठीक है, so they don't have a lot of secrecy when it comes to their financial information. जी आया समझ? G, can you hear me? Yes, I can hear you. All right, फिर आपकी होती हैं public limited companies. So public limited companies, these are larger companies. They have to get registered as a public limited company and they have to get themselves quoted on the stock exchange if they want to sell their shares directly on the stock exchange. ठीक है? अच्छा, अब बिकॉज ये कंपनीज बहुत बड़ी हो जाती हैं और इसके ओनर्स आर लाइक कई दफा मिलियंस में होते हैं ओनर्स, राइट? It is not possible for the owners to run the company now because there are like thousands or millions in number. So इतने ज्यादा लोग तो आके नहीं कंपनी को चला सकते. So then the concept arises of a divorce between ownership and control. Now the ownership is with the shareholders, but the control of the company is given to the board of directors. And board of directors को अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स करते हैं. ठीक है, तो जो रन करना है ना कंपनी को, जो उसकी मैनेजमेंट करनी है, वो ये करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे. Why do people do unlimited companies? If what's the point of unlimited company? Unlimited companies are a separate legal entity, which means that the company can own its property and have all contracts in its own name. But unlimited का मतलब है कि जो शेयर होल्डर्स या मेंबर्स होते हैं ना उस कंपनी के, they are going to guarantee that in case the company goes bankrupt, they will personally pay off the debts. So the reason for making an unlimited company is that an unlimited company does not have to get their accounts audited. जो हर साल अकाउंट्स बनाती है ना कंपनी, उसको ऑडिट करवाना पड़ता है. बट इन दिस केस आपकी अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो फिर उनको ऑडिट नहीं करवाना पड़ता. जी साहिल, आया समझ? Yeah. ऑलराइट, सो ये आपको समझ आ गया कि कंपनीज में व्हाई इज देयर अ डिवोर्स ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल? जी साहिल, Yeah. क्योंकि इतने ज्यादा हो जाते हैं shareholders, there's so many numbers that it is virtually impossible for them to work together and run the company, which is why then they hire a set of directors. They make a board of directors who are then made responsible for running the company. ठीक है? Mhm. Yeah. अच्छा, अब जब आप एक एक कंपनी बनाते हो, ठीक है, तो कंपनी को सेटअप करने के लिए देयर आर सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज दैट हैव टू बी मेट, राइट? सो पहला क्या होता है कि दे हैव टू मेक अ डॉक्यूमेंट. Any company, when they're going to set up, any business is going to set up as a company, they have to make a document called the Memorandum of Association. इस document में you state the company's name, the address of the head office, right? So in case if the company has to be contacted, the address should be written on the Memorandum of Association. The maximum capital, share capital, which the company is going to get authorized. And the declared aims of the business. What are the activities the business is going to be doing? All this is written in this document called the Memorandum of Association. This is one of the documents that has to be submitted
to the company's house in order to form a company. जी मैक्सिमम कैपिटल मतलब क्या मैक्सिमम मैक्सिमम कैपिटल का मतलब है नहीं और इसकी बात so we have maximum capital, then you've got the क्या कहते हैं declared aims of the business. So what does the business aim to do? The address of the head office and the name of the company. Alright, और कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं आपको रजिस्टर करवाने के लिए कंपनी को? Articles of Association. It's another document. The document which is the memorandum of association, that is not amendable. You cannot change it. So once you make that document, you cannot change it. But Articles of Association is a document that can be altered. ठीक है, अगर आपको कल को कोई चेंजेस उसमें लेके आने आप कर सकते हैं. इस डॉक्यूमेंट के अंदर you mention how the business is going to be internally controlled. And isme you give like the names of the directors and the procedures that are going to be followed when the meetings of the company are held. तो इस तरह की details इस document में दी जाती हैं. ठीक है? So when these documents are submitted to the company's house, फिर आपके कंपनी को रजिस्टर कर लेता है the registrar at the company house. Private limited companies can immediately start trading once they get registered. But public limited companies, they need to get a trading certificate. Trading certificate before they can start trading. वो भी कौन इशू करता है उनको? कंपनी हाउस इशू करती है. जी आया समझ साहिल? अब हाँ, what are the advantages and disadvantages of public limited companies? Sahil, can you hear me? Yeah, I can hear you. The advantages and disadvantages of looking. All right. Yeah, I So, can hear you. okay. So advantages क्या हैं? कि limited liability होती है, separate legal entity होती है, continuity होती है. These are the same as the private limited companies. They जो public limited companies होती हैं, they can easily buy and sell their shares to the shareholders. ठीक है? Because they're registered on the stock exchange and they have access to the public. They can directly sell to the public. And they have access to substantial capital sources as well. Because when the company floats their shares to be bought for the first time on the stock exchange, you have millions of people who can buy the shares. So that's why they have substantial capital source. Substantial का मतलब होता है they've got like a big capital source, like which substantial होता है anything which really makes a difference. ठीक है? फिर legal formalities होती हैं कंपनी फॉर्म करने की, which is the disadvantage. आपको कंसल्टेंट्स चाहिए होते हैं बड़ी कंपनीज के लिए, फाइनेंशियल एडवाइजर्स चाहिए होते हैं. सो consultants and financial advisors are also going to be costly, right? फिर share price is subject to fluctuation. Share price आपकी almost daily base पे vary कर रही होती है, and it especially depends upon कि आपकी क्या कहते हैं कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे हैं. अगर तो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छे हैं तो कम फ्लक्चुएट करेगी शेयर प्राइस. अगर अच्छे नहीं हैं तो फिर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है शेयर प्राइस. Got you. The share price, like how much you would buy the company for, or is that just how much you would be getting for your shares? Yes, it would be if you sell the shares of your company, how much are they going to be sold for? Okay, got you. मैं आपको नहीं दिखाना चाह रही थी असल में, बट ये माई ऐप इज नॉट वर्किंग.
आई वांटेड टू शो यू दिस कि स्टॉक एक्सचेंज पे कैसे आप सेल परचेज करते हैं. चलो आई गेट दिस चेक्ड कि मेरी ऐप क्यों नहीं चल रही है. Then I can show you someday. Anyhow, जी इतना साहिल आ गया ना समझ. अब है नेक्स्ट हमारे, ओ सॉरी, हम डिसएडवांटेजेस कर रहे थे. फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स कंसर्निंग डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स एंड द पब्लिक. फॉर एग्जांपल, यू हैव टू एनुअली पब्लिश अ डिटेल्ड एनुअल रिपोर्ट. ठीक है. बिजनेसेस जो होते हैं वो अपनी बहुत डिटेल एनुअल रिपोर्ट भी पब्लिश करते हैं, जो आपकी खासतौर पर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं. एंड ये कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं होती है, ये काफ़ी डिटेल रिपोर्ट होती है. बल्कि लेट मी सी इफ आई कैन शो यू अ रिपोर्ट. मैंने रिपोर्ट सेव की थी कहीं ना कहीं. ये देखो साहिल, आपको आ रही मेरी स्क्रीन नजर? जी साहिल, कैन यू सी माई स्क्रीन? Yeah. जी. अच्छा, अभी ये ना एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड हो रही है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ ये. ठीक है, कि पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड ओवर कोई भी आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, दे हैव टू पब्लिश इस तरह की एनुअल रिपोर्ट. एंड दिस इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. पहले आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, फिर आप उनका ऑडिट कराते हो, फिर ऑडिटर की रिपोर्ट लगाते हो, फिर आपको इस पे और बहुत सी रिपोर्ट्स लगानी पड़ती हैं, लाइक एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट, आपके क्या कहते हैं, सोशल, आप क्या काम आपकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, इस तरह की सारी रिपोर्ट्स आपको साथ इसमें लगानी पड़ती हैं एनुअल रिपोर्ट में. अभी आप देखो, दिस इज एनुअल रिपोर्ट ऑफ पेल जो कंपनी है उसकी. अभी ये देखते जाना. ये देखो, टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या क्या है इसमें. नंबर्स, कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स हैं, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है, एनवायरमेंटल रिपोर्ट है, गवर्नेंस के ऊपर है, डायरेक्टर की रिपोर्ट है, बिजनेस की आउटलुक है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में. अब आप ये देखते जाओ. लुक एट ऑल ऑफ दिस. ये देखो, यहाँ पे उन्होंने आपको ये भी बताया है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कहीं था चार्ट बना हुआ था, है भी पता नहीं कहाँ गया चार्ट. पर एनी हाउ ये देखो, जी. ये स्वॉट एनालिसिस भी किया हुआ है, स्ट्रेंथ्स, अपॉर्चुनिटीज, वीकनेसेस एंड थ्रेट्स. फिर सिग्निफिकेंट इवेंट्स क्या हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर. फिर देर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट देयर कंपेटिटर्स. ये पोर्टर फाइव फोर्सेस है, ये एनालिसिस पोर्टर फाइव फोर्सेस. ये गवर्नेंस के बारे में, हु इज द चेयरपर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, हु इज द सीईओ, ऑल ऑफ दैट.
This is a Sharia compliant company, so they've attached a Sharia certificate as well. ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में है, डायरेक्टर की रिपोर्ट है, ये चेयरपर्सन का रिव्यू। ये सीईओ है। ठीक है, अब ये देखो, ये आपके नंबर्स आ गए हैं सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Mm-hmm. सो यू कैन सी कि ये कोई छोटा मोटी नहीं है रिपोर्ट। इट्स कितने पेजेस के, 300, अराउंड 331 पेजेस की रिपोर्ट है। तो ये हर साल बनानी पड़ती है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को, because this is a way of the public limited companies being accountable to the public जिनके पैसे लगे होते हैं, so that the people, investors can see where the money is going and how the company is performing its activities and how the company is performing, की overall performance कैसी है। ये देखो, ये सारी 300 पेजेस की रिपोर्ट है। ठीक है, सो दिस इज द इशू विद योर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, कि उनको इतनी एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, विच इज अगेन वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल्सो कॉस्टली। जी आया साहिल समझ? Yeah. ओके, नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव्स, अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर की इज कोऑपरेटिव्स। सो कोऑपरेटिव्स इस तरह से होता है कि देर डिफरेंट, आमतौर पे डिफरेंट बिजनेसेस or business people who come together for some kind of a common benefit. ठीक है, and all of those people who become the members of that cooperative, they are, they're the members, they also are working for the cooperative, and they're also the beneficiaries, they're the ones who are going to get the benefit। ठीक है, जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, इन एन एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव द मेंबर्स अरेंज फॉर द परचेज ऑफ सीड्स मटेरियल्स इन बल्क so that they all can benefit from the economies of scale. The cooperative can buy the produce for the members and then sell it collectively in order to obtain a better price। ठीक है, तो फायदा क्या होगा कि जब वो बल्क परचेज करेंगे और उनको डिस्काउंट्स मिलेंगे, दे विल गेट चीपर रॉ मटेरियल which can then be bought by the members at a cheaper rate as compared to the market rate। So सबको एक म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा होता है। So advantages of such business units are buying in bulk, working together to solve problems and take decisions, good motivation for the members to work hard because they are the ones who are going to benefit from it। ठीक है, क्योंकि फायदा भी उनको हो रहा है, तो फिर वो मोटिवेटेड होके काम करते हैं। पोटेंशियल ड्रॉबैक्स क्या हैं? अगर पुअर मैनेजमेंट स्किल्स हैं या अनप्रोफेशनल मैनेजर्स हैं, तो फिर दे कैन ऑल्सो बी, it could be, the cooperative might not be operating very efficiently, and then capital shortages भी हो सकती हैं because इसमें members contribute कर रहे होते हैं but they do not sell their shares to the public, and decision making can be slow। Why? Because the members are not full time working for the cooperative। वो खुद भी बिजनेसमैन होते हैं, वो कुछ ना कुछ अपना काम कर रहे होते हैं, बट दे कम टुगेदर सो दैट दे ऑल ऑफ देम कैन हैव सम काइंड ऑफ अ like mutual benefit। So they don't give a lot of time to the cooperative, which is why the decision making could be slow। जी साहिल, ये आया समझ कोऑपरेटिव? जी। ओके, फ्रेंचाइज की बात करते हैं। क्या होता है फ्रेंचाइज, आप बताओ। A franchise is basically some company, but you basically buy off the company just one location. ठीक है,
So it's like a legal contract between two businesses. One business lets the other business use their name, their logo, their marketing strategy, their product, and which is the franchisor, right? And franchisee होता है जो franchise purchase कर रहा होता है. So the franchisee can use जो franchisor का logo है, name है, marketing methods and even the product at some other location. और वो उससे कैसे बेनिफिट करता है? बिकॉज जो फ्रेंचाइजर है जिसकी आप फ्रेंचाइज ले रहे हो उसका बिजनेस ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड होता है एंड इट ऑलरेडी हैज अ कस्टमर बेस. जैसे आप अगर एक मैकडोनल्ड्स की ले लो, फ्रेंचाइज ले लो, तो मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज लेके आपको इतनी मेहनत नहीं उस पर करनी पड़ेगी बिकॉज मैकडोनल्ड्स ऑलरेडी हैज अ नेम, Mhm. राइट? Yeah, सबको yeah, मैकडोनल्ड्स के बारे में पता है तो आपको उसकी इतनी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जैसे यहाँ पे yeah, उन्होंने एग्जांपल्स दिए मैकडोनल्ड्स की, बेन एंड जेरी की, कि दे गिव देयर फ्रेंचाइजेस टू पीपल अराउंड द वर्ल्ड. आपको इसीलिए देखो ना, आपको हर जगह फ्रेंचाइज बिजनेसेस मिल जाते हैं. आपको पाकिस्तान में मिल जाएंगे, आपको यूके में मिल जाएंगे, यूएस में मिल जाएंगे. यू फाइंड देम ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. yeah. So there are some benefits of opening a franchise business. क्या benefits होंगे? Few chance है of new business failing. Why? Because it's an already established brand and people already know about it. Then whenever you get a franchise from the franchisor is also going to give you advice and training as well. कि उसका product कैसे बनाना है या कैसे sell करना है and so on. Then national advertising is paid by the franchisor. फ्रेंचाइजी को नहीं करनी पड़ती है. जो फ्रेंचाइजर है, जैसे पाकिस्तान में भी अगर जगह जगह मैकडोनल्ड्स के बिलबोर्ड्स लगे होते हैं तो वो मैकडोनल्ड्स वाले खुद लगाते हैं, फ्रेंचाइजी नहीं लगाता. ठीक है. फिर सप्लाईज ऑब्टेन फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड एंड क्वालिटी चेक सप्लायर्स. इवन आपको पता है कि मैकडोनल्ड्स की जितनी सप्लाईज होती हैं, लाइक उनके बन्स हैं या पैटीज हैं या व्हाटएवर, वो सारा मैकडोनल्ड्स के ऑथराइज्ड सप्लायर्स से आता है. तो आपको सप्लायर्स का भी एक्सेस मिल जाता है. एंड देन फ्रेंचाइजर एग्रीज नॉट टू ओपन अनदर ब्रांच इन द लोकल एरिया. जैसे अगर मैंने एक डिफेंस फेज 5 में ब्रांच ली है मैकडोनल्ड्स की, तो आप अब जाते हो उनके पास, मैकडोनल्ड्स के पास, आप कहते हो मैंने भी डिफेंस फेज 5 में खोलनी है, तो दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ यू बिकॉज देव ऑलरेडी गिवन अ ब्रांच टू समबडी देयर. ठीक है, तो सेम जगह पे आपको ब्रांच नहीं मिलेगी. फिर है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और रेवेन्यू हैज टू बी पेड टू द फ्रेंचाइजर ईच ईयर. Okay. तो जब आप फ्रेंचाइज लेते हो किसी से, किसी और बिजनेस की, तो आपको उनको एक फ्रेंचाइज फी हर साल पे करनी पड़ती है. फिर इनिशियल फ्रेंचाइज की एक लाइसेंस फी होती है जब आप पहली दफा लाइसेंस खरीदते हो. सो दैट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव स्पेशली फॉर लार्जर ब्रांड्स लाइक मैकडोनल्ड्स. देन लोकल प्रमोशन में स्टिल हैव टू बी पेड बाय द फ्रेंचाइजी. दैट्स अ डिसएडवांटेज. देन आपके चॉइस ऑफ सप्लायर आपके पास नहीं होता, वो आपको फ्रेंचाइजर ही बताएगा आपने किससे सप्लाईज लेने हैं. एंड स्ट्रिक्ट रूल्स ओवर प्राइसिंग एंड लेआउट ऑफ द बिजनेस, उसमें आपका कंट्रोल नहीं होता. जैसे अगर आप साहिल मैकडोनल्ड्स का एक फ्रेंचाइज लेते हो, तो you cannot decide to change the colors of the interiors. You cannot decide कि हम price different करेंगे. That all of that has to be determined by the franchisor. So then you will have less control over your business. जी साहिल, ये आया समझ? Yeah.
आगे है आपके जॉइंट वेंचर्स। सो जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं? सो जॉइंट वेंचर्स का मतलब होता है कि इट्स नॉट द सेम एज मर्जर। मर्जर होता है व्हेन टू बिजनेसेस दे जॉइन टुगेदर एंड बिकम वन। ठीक है। Mhm. जॉइंट वेंचर में आपके टू और मोर बिजनेसेस एग्री टू वर्क टुगेदर ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और अ बिजनेस डिवीजन। दे स्टे सेपरेट। ये नहीं होगा कि दो बिजनेसेस एक बन जाएंगे। वो तब होता है जब मर्जर या टेक ओवर होता है। ठीक है। तो जॉइंट वेंचर में दे विल मेंटेन देयर ओन इंडिविजुअल आइडेंटिटी बट दे माइट बी वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टुगेदर। ठीक है। तो इसमें फायदा आपको क्या होता है? आपके जब जॉइंट वेंचर्स क्यों लोग बनाते हैं? बिकॉज कॉस्ट शेयर हो जाती है बिटवीन द टू बिजनेसेस, टू और मोर। या रिस्क भी आपका क्या होता है? शेयर हो जाता है। ठीक है। या कॉस्ट है अगर ऑफ डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, बिकॉज व्हेन यू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स उस पर आप R&D करते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो, इट कैन बी वेरी कॉस्टली, सो दैट कॉस्ट कैन ऑल्सो बी शेयर्ड। देन डिफरेंट कंपनीज माइट हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड एक्सपीरियंसेस। जैसे क्या नाम है उसका, मर्सिडीज। मर्सिडीज ने साउथ कोरिया की कोई कंपनी है जो बैटरीज बनाती है, बैटरीज। उनके साथ उनके साथ जॉइंट वेंचर फॉर्म किया टू फॉर्म ईवी कार्स। ठीक है। तो मर्सिडीज रिमेन्स एक अलग कंपनी, एक अलग एंटिटी, और वो जो साउथ कोरिया की कंपनी है उसका नाम मुझे भूल गया है, बैटरीज बनाती है कोई कंपनी, वो एक सेपरेट कंपनी है। बट एक प्रोजेक्ट के ऊपर वो इकट्ठे काम कर रहे हैं, वो जो ईवी कार्स बना रहे हैं। ठीक है। Yeah. फिर दे माइट हैव देयर मेजर मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज, सो दे कैन एक्सप्लॉइट दैट एज वेल। जैसे जर्मनी, जर्मनी में आपकी मर्सिडीज की जो मार्केट है वो जर्मनी है, या आपकी यूरोपियन कंट्रीज है। मेनली जर्मन ब्रांड है ना मर्सिडीज। और वो जो जो बैटरीज जो बनाती है कंपनी, वो साउथ कोरिया की कंपनी है। अब जब ये दोनों एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो दे कैन एक्सप्लॉइट बोथ द मार्केट्स, जर्मनी की और यूरोप की भी, और साउथ कोरिया और ये एशियन मार्केट को भी वो कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है। Samsung SDI. फिर वो कहते हैं such agreements are not without their risk. Style of management and the culture of both the organizations could also be very different, which can make it difficult for the two teams to work together. Then errors and mistakes might lead to one blaming the other for the mistakes. तो blame game भी होती है कई दफा। And business failure of one of the partners would put the whole project at risk. अगर एक जो पार्टनर है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो दूसरे के ऊपर भी उसके फेलियर का रिस्क आ रहा होता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मेकिंग जॉइंट वेंचर्स। अच्छा, इसका आपने अब ये करने हैं कुछ क्वेश्चंस। साहिल, मैंने आपको दिए भी थे कि कुछ क्वेश्चंस किए थे आपने। जी वो भेजता हूँ। यहाँ पे आपने करना है, ये अब आप कर सकते हो, सोल ट्रेडर एंड पब्लिक लिमिटेड के बीच में जो कंपैरिजन है। फिर ये फ्रेंचाइज वाला आप कर सकते हो आप। ठीक है। एज और use partnership and public limited company, explain how the legal structure of a business affects accessibility rates। हाँ, ये भी अब आप कर सकते हो। ये तीन आपने करने क्वेश्चंस। और इस चैप्टर की कोई केस स्टडी भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ देखते हैं केस स्टडी क्या है। What seems to be the main reason for the joint venture between Ford and Schengen? Which business, in your opinion, seem to gain most from this venture? ठीक है। What problems might these two businesses have in dealing with each other? ये अच्छा क्वेश्चन है, जॉइंट वेंचर वाला। ये केस स्टडी आपने करनी है, या आप बेशक वीकेंड पे कर लेना।
ठीक है, जी ठीक। एक्टिविटी 2.6, क्योंकि इसमें एवेल्युएशन वाला भी क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहे evaluate the likely advantages to both Nestle and Frontera of their new joint venture। तो इसमें आपने पहले एक्सप्लेन, क्योंकि वैल्यूएशन के आप पहले जॉइंट वेंचर को एक्सप्लेन करोगे, फिर आप बताओगे कि जॉइंट वेंचर के क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, और फिर आप बताओगे कि नेस्ले को क्या एडवांटेजेस हो रहे हैं जॉइंट वेंचर के और फ्रंटेरा को क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को बताओगे और फिर आप इस पे अपना एक कंक्लूजन दोगे कि वेदर दिस जॉइंट वेंचर नेस्ले और फ्रंटेरा का जो जॉइंट वेंचर है, वेदर इट वाज अ गुड आइडिया और नॉट। फिर आप अपना उस पे ओपिनियन दोगे या कंक्लूजन दोगे, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट 12 मार्क्स। ठीक है, ये आपने वीकेंड पे करना है। जी ठीक है। अच्छा, अब आगे हम देख लेते हैं होल्डिंग कंपनीज। आपको एनी आइडिया होल्डिंग कंपनीज क्या होती हैं? Holding companies, हम्म, are they companies that have basically just been like saved? ऑलराइट, सो होल्डिंग कंपनीज इस तरह से होता है साहिल, कि कई दफ़ा एक कंपनी होती है, वो दूसरी कंपनी के अंदर शेयर्स खरीद लेती है, और वो इतने ज़्यादा शेयर्स खरीदती है कि उसका वो कंट्रोल एक्सरसाइज करने लग जाती है दूसरी कंपनी के ऊपर। ठीक है, जो कंपनी शेयर्स खरीदती है उसको आप होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी कहते हो, और जिसके शेयर्स खरीदे जाते हैं उसको आप कहते हैं सब्सिडरी। सो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं यूनिलीवर है, यूनिलीवर है, यूनिलीवर ने लिप्टन कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। यूनिलीवर ने लिप्टन के 60% शेयर्स परचेज कर लिए। अब यूनिलीवर लिप्टन का क्या बन गया? मेजॉरिटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो ज्यादा वोटिंग राइट्स किसके पास है? यूनिलीवर के पास है वोटिंग राइट्स। तो यूनिलीवर को आप क्या कहोगे? यूनिलीवर को आप कहोगे द पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी, और लिप्टन को आप क्या कहोगे? उसकी सब्सिडरी है। So now this company, Unilever, the parent company, can exercise control over the subsidiary। और जब अकाउंट्स बनेंगे ना यूनिलीवर के, तो यूनिलीवर के अकाउंट्स के अंदर लिप्टन के एसेट्स भी इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। उनको उसको आप कहते हो जॉइंट अकाउंट्स बनते हैं, फिर जॉइंट अकाउंट्स, जिनको आप कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो वो कहते हैं होल्डिंग कंपनी अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट ओन्स एंड कंट्रोल्स अ नंबर ऑफ सेपरेट बिजनेसेस बट डज नॉट यूनाइट देम इन वन यूनिफाइड कंपनी। सो दे विल मेंटेन, जो आपके सब्सिडरीज होंगी ना, जैसे अगर यूनिलीवर की एक सब्सिडरी लिप्टन है, यूनिलीवर की लिप्टन है एक सब्सिडरी, एक सब्सिडरी डालडा है,